good evening. You're watching News Track with me, Maria Shakil. It was the day of big political rallies, and why not? Because it's only 1 week left for the campaigning for the first phase on 6th to end. Home Minister Amit Shah was campaigning here. He gave the big talking point that Nitish Kumar is the face and that there is no vacancy for the chief ministerial post here in Bihar. Rahul Gandhi too campaigned extensively in the state. So what is the political narrative of Bihar right now? Here's that story. For over 2 decades, this man has been synonymous with the role of Bihar's chief minister. A record 9-time CM, the man is favorably known as Sushasan Babu and unfavorably known as Paltu Ram at the same time, and now faces possibly his biggest political test yet. As Bihar gears up for its first vote in about a week, all eyes are on Nitish Kumar as to whether he will be chief minister once again, even if his alliance emerges victorious. And spurring on the speculation is his opposition, who in the past have also been his allies. Rahul Gandhi in his first major political rally in Bihar's Muzaffarpur claiming that Nitish Kumar is just a remote control in the hands of the BJP. नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। Of course, Rahul has echoed what his ally Tejashwi has been claiming all along, that Bihar's talismanic CM was just a puppet. अमित शाह जी ने 2 प्रमुख बातें इस चुनाव के संदर्भ में कहा। पहली बात कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि एनडीए का कौन होगा, वो विधायक चुनेंगे। पहली बात, यानी नीतीश कुमार जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये एनडीए ने घोषणा अब तक नहीं की है। यानी स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसका ये उनका ही मुख्यमंत्री होगा। But wary of this narrative hijacking the poll discourse, the BJP has hit back, with Amit Shah in Darbhanga giving his most emphatic endorsement yet of Nitish being the NDA CM face. सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। But while the Mahagठबंधन can pat itself on the back for putting the NDA on the back foot over the CM face issue, it did ignite a political row with a low blow on the Prime Minister. उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। Rahul Gandhi's remark that the Prime Minister was ready to even dance to milk the Chhath season for votes, triggering angry reactions from the BJP. राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है, छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की माँ के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसैरे भाई। From remote control and a puppet to now a dancer for votes, the election discourse in the state of war that is Bihar continues to plummet to newer lows. With Maria Shakil in Patna, Bureau Report, India Today.
She is the youngest candidate in this election in Bihar. At 25, Maithili Thakur, the folk singing sensation from the state, is contesting on a BJP ticket from Alinagar in Madhubani. I caught up with her to understand what she has to say about this transition from singing to politics. Has she learned the Saregama of politics was my first question. Listen in to what Maithili said and also what people of her constituency are saying about her candidature. तालियों से सम्मान करें भारत माता की वंदे वंदे हर हर महादेव। One of the youngest candidates in this election in Bihar is 25-year-old Maithili Thakur. Perhaps she needs no introduction because she is a famous folk singer. Maithili, welcome to India today. Thank you so much. राजनीति के कितने सारे गामा पा समझ पाई हैं आप? 10 दिन हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मेरे इधर भाई, मेरे इधर सभी बहनें, माताएं, सब लोग मेरे परिवार के लोग बन चुके हैं। तो कभी भी कठिनाई महसूस होती है तो मैं किसी एक से भी बैठ के बात कर लेती हूँ तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। राजनीति टफ है या गाना? गाना का जितना भी अभ्यास था, जो टफ पार्ट था, मुझे मैं छोटी थी तो रियाज के समय निकल गया तो वो याद नहीं है। अब ये क्या है कि एक स्क्रैच से शुरू है तो आई कैन फील कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो प्रिपेयर्ड है मेहनत के लिए? ऑफ कोर्स आई एम। तो अभी तक कैसा रिस्पांस रहा है? बहुत अच्छा, मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत अपने लोग हैं, मतलब मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो ऐसा बोले कि या फिर जिसके अंदर से विरोध की थोड़ी सी भी फीलिंग हो। सब ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे पकड़ के रोने लगते हैं, जो मुझे ढेर सारा हक करते हैं। तो 25 साल की हैं आप, इंतजार भी कर सकती थी राजनीति में आने के लिए। इसी साल क्यों आपने सोचा कि इसी बार चुनाव लड़ना है? जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ अपने आप संयोग बनते गया और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। आपका हमेशा ये कहना रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको भेजा है चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से, अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या बात हुई थी? बात जो हुई थी, अगर इसको थोड़ा और पहले से रिलेट करके देखें तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लेकर के आएंगे। तो शायद मुझसे शुरुआत हुई है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और मेरा 25 वर्ष अभी पूरा हुआ है 2-3 महीने पहले, जुलाई में। तो मैं यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ सबके बीच में। तो ऐसा ही है कि सब कुछ अपने आप होता गया। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने ये संयोग बना के मुझे इधर भेजा है। बीच में ट्रोलिंग भी हुई आपकी, पग की कंट्रोवर्सी भी हुई, तो वो सब प्रेशर कैसे झेल रही हैं? पाग के बारे में सब होता रहता है एक्चुअली। अभी आप इन लोगों से पूछेंगे ना, जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, सब मैथिल हैं, इस संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं। इनको पता भी नहीं होगा कि क्या कंट्रोवर्सी है, इन सबको कोई जानकारी भी नहीं होगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी या फिर आप नेगेटिव पीआर मार्केटिंग, जो मुझे पहले नहीं पता था क्या होता है, पिछले 10 दिन में मैंने अपने खिलाफ होते हुए देखा और समझा कि नेगेटिव पीआर क्या होता है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने बारे में इसका जो भी मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं उसमें। मैथिली, ये हमेशा कहा जाता है जो सेलिब्रिटी होते हैं, इसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो कंट्रोवर्सी ये बोला कि पाग में से मखान लेके खाया। कोई भी मुझे बता दे कि अगर मैंने पाग में से मखान लेके खाया, ये है ही नहीं। तो मुझे मालूम है ये क्लिप्स को थोड़ा स्विच करके इधर उधर करके, तो आई रियली डोंट पे अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। मैथिली, ये कहा जाता है जो सेलिब्रिटी हैं जब वो कैंपेन करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कभी कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आकर के देखते हैं, वो मिसिंग इन एक्शन हो जाते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लिए घर भी ढूंढ रही हूँ। मैं बहुत सीरियसली ये काम करना चाह रही हूँ। दरभंगा में अब देखिए, मिथिला में हमारे पास एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट। अब जो पहले जो चीजें थी, अगर आप 15 साल पहले वाले बिहार को देखोगे, 20 साल पहले वाले बिहार को देखोगे, तो अब देखिए अब बिहार कहाँ स्टैंड कर रहा है।
हर कुछ है, हर चीजें हैं बिहार में, सब कुछ है। मैं तो इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन यही था मेरे लिए कि मुझे इतना कुछ देखने को मिला। जीत हार अलग चीज है, लेकिन ये जो प्यार और सम्मान मुझे लोगों से मिल रहा है, ये किसी भी जीत हार से ऊपर है। आपने तो बस नीतीश कुमार का राज्य देखा है, उससे पहले क्या हुआ आपको कैसे पता? मैं बताती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैंने शुरुआत बिहार से की। मैं हर जगह ट्रैवल करने के लिए जाया करती थी कि इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे जितने भी साथी कलाकार उस वक्त मेरे साथ ट्रैवल करते थे, सब 60 इयर्स 65 इयर्स के थे। वो बताते थे और एक आर्टिस्ट का नाम ले करके, जो उस समय की बहुत जानी मानी गायिका थी, कि जब हम उनके साथ जाते थे तो हमको 6 बजे से पहले ही सब कुछ बंद करके एक जगह रहना होता था, हम जा ही नहीं पाते थे। और ये रोड पे जब हमको 1 घंटा लग रहा है जाने में, हमको 6 घंटा लगता था जाने में। तो मैंने इतना सुना है ना, और पापा की लाइफ भी मैंने देखी कि कैसे अफेक्ट हुआ है, और वो इनडायरेक्टली मुझे भी अफेक्ट किया है। तो ये चीजें मैं समझती हूँ। और अभी क्या है, बिहार मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जगह बन गया। तो मैथिली बॉम्बे और दरभंगा कैसे मैनेज करेंगी? मैं बॉम्बे नहीं रहती हूँ, मैं कभी रही नहीं बॉम्बे। जब रिकॉर्डिंग के लिए जाती हैं तो? मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाँ, दिल्ली और फिर दरभंगा कैसे मैनेज करेंगी? 2 घंटे की फ्लाइट है, तो आना 1.5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ, सिंगिंग करियर का कैसा रहेगा फिर? सब कुछ चलते ही रहेगा। मैंने जीवन में अभी तक कुछ प्लान करके किया ही नहीं है कभी। सब चीज अनप्लान्ड रहा है। अब ये भी अनप्लान्ड था। मुझे जिस दिन टिकट मिला उस दिन पता चला कि मैं अब इलेक्शन लड़ूंगी। ये जिम्मेदारी आप समझ रही हैं, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना हाउस में? आई नो, आई एम रेडी फॉर इट। यू आर रेडी फॉर इट। मैथिली, आई डू नॉट वांट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन विदाउट योर सॉन्ग। तो एक छोटा सा। मेरा गला बहुत खराब है। छठ की घाट की तैयारी है, छठ की तैयारी है तो गाते हैं। केरवाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, उजे खबरी जनई बोअदित से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। I'm wishing you all the best. Let's see what happens on 14th, and I'll connect with you again on that day. Thank you so much. Thank you. ये आन बान है, ये भगवान निशान है। इस युवा किस बात पर वोट देगा? क्या सोच करके युवा वोट देगा? मैथिली ठाकुर अच्छा है, इसलिए देंगे हम लोग। क्या कि वो मतलब युवा नेता भी है और हम लोग भी युवा हैं, तो युवा को ही समझ सकते हैं, इसलिए हम उनको देंगे वोट। लेकिन यहाँ की हैं? कौन? यहाँ लोकल है? हम यही क्या? नहीं, वो लोकल हैं। नहीं, लोकल नहीं, उससे क्या है, कहीं की भी है, मतलब युवा है। हमारा बात कुछ बिहार की है ना, समझेंगे तो मतलब हमारे लोग की बात सुनेंगे तो काहे नहीं हम उनको देंगे। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन तो लोकल इशू पर वोट होगा कि इधर आओ, इधर आओ युवाओं, बिहार के युवा, जरा मुझे, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार वोट दोगे, फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो बिहार के युवा किस इशू पर वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बीजेपी किसी को भी टिकट देगा हम उसको देंगे। आप क्या सोच रहे हो, इस बार क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी, मैथिली ठाकुर। लेकिन वजह तो बताओगे? बहुत सारी वजह है, जैसे नया चेहरा आना चाहिए, सब हर एक को मौका देना चाहिए। बीजेपी इस बार नया युवा को मौका दी है, मैथिली ठाकुर को। हमारे नज़र में बहुत अच्छी है, मतलब एज भी कम है, युवा है। अगर आज वो जीती है तो कल हो सकता है कल किसी और को भी युवा में खड़ा कर सकती है। जैसे अभी देखिए बहुत को मतलब आगे बढ़े, अभी चिराग पासवान को ही देखिए, वो भी एक युवा है, कितना कुछ कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो उसी प्रकार मोदी जी कुछ सोच कर के ही मैथिली ठाकुर को यहाँ पर भेजी है। युवा नेता तो तेजस्वी यादव भी हैं। हाँ, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में आपको बहुत सारा अंतर है। उनको सब समझते हैं तेजस्वी यादव कैसे हैं और चिराग पासवान कैसे हैं। हाँ, क्या अंतर है चिराग पासवान में? चिराग पासवान में बहुत सारी खूबी है और तेजस्वी को तो सब जानते हैं कैसे है, नहीं है सो। तो बिहार का युवा क्या सोच रहा है?
इस बार मोदी सरकार। एनडीए सरकार। अच्छा, चलिए। Madhubani paintings are synonymous with Bihar. It's an art form which is known for its natural dyes and mythic storytelling. But this art form is not only associated with Madhubani district. In fact, in neighboring Darbhanga district, I caught up with young girls who are promoting this art form and are also celebrating it. Listen in to what they have to say about this election in Bihar. इतना सुना था हमने आपके बारे में। 30 साल पहले आपने शुरू किया और अब आपकी बच्चियां इसको आगे बढ़ा रही हैं। ये एक मिथिला का विरासत हुआ, इसको जो बोलते हैं धरोहर, तो ये एक मिथिला पेंटिंग, ये मिथिला का धरोहर है। तो इस धरोहर को हम तो सोच नहीं थे जो मेरी बेटी लोग इसको आगे लेकर चलेगी, क्योंकि हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए और पढ़ने के लिए सबको बाहर भेजे, लेकिन इसका जो मांग बढ़ते गया और तब बेटी लोग पहले तो ऑनलाइन डाली, तो उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी सीए है, तो मेरा बिजनेस का पूरा पेपर वर्क उसके आपका तो पूरा सॉर्टेड है बिजनेस। चलिए हम माशा जी आपकी बच्चियों से बात करेंगे। In the heart of Darbhanga, there are 3 sisters running this business for Maithili paintings. And how do you collaborate among yourselves? You know, sibling rivalry जो होती है उसका कैसे होता है? मैम हमने क्योंकि काफी सालों से हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा ऐसा रहा कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमने विद टाइम डेवलप किया है आपस में। तो हमने जो डिपार्टमेंट्स है वो डिवाइड कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट वाली सिस्टर का काम है कि वो फैब्रिक सोर्सिंग देखेगी, सेकंड हम दोनों का काम है कि डिजाइनिंग देखना है। तो डिजाइनिंग में भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अब एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस वाले पे तो मुझे करने दो। Interesting thing is, Shatakshi, that all of you are an example of reverse migration in the context of Bihar. You studied outside Bihar in NIFT Mumbai, and then you decided to come to Darbhanga to work with your mother. Yeah. You are also studying in Delhi University, and perhaps you'll also come back. You'll explore life, how it offers. Why reverse migration? So, you know, it was like parents, मेरे mom and dad, हमेशा हमें कहा कि just go ahead, explore the world, हर चीज़ पढ़ाई करो. In fact, you can see कि हम 5 ही अलग अलग फील्ड में हमने पढ़ाई की है. And then it was like कि बाहर जॉब करो. And in fact, Umadi, she worked for a company for around 1.5 years. And then she realized कि, you know, वहाँ पे आप जॉब जो हमें दे रहे हैं उससे बहुत बेटर है. एंड इनफैक्ट ये है कि मैं एक जॉब वहाँ पे ले रही हूँ, बट यहाँ पे आके आई कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जो कि बिहार का एक बहुत ही बड़ा इशू है. तो द एम्प्लॉयमेंट थिंग वाज अ मेजर बिग फैक्टर, जो कि हमारे हमारे ऐसे हार्ट एंड सोल में था कि नहीं यार वापस आएंगे ना तो एक जॉब हम वहाँ पे करें, बट यहाँ पे आके तो यार 50 जॉब्स हम एक बंदे क्रिएट कर देंगे. That's actually a very noble thought. Divyani? Namaste. Job creation. All of you are job creators, right? It's a good move which has been undertaken by all of you. Yes. Job creation के बारे में क्यों सोचा आपने? क्योंकि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है. सब लोग पढ़ने के लिए बाहर जाता है, नौकरी के लिए बाहर जाता है, क्योंकि बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में भी नहीं है. मुझे ऐसा था कि मेरी माँ का आर्ट कैसे मैं हेल्प करूं ताकि उसको ग्रो करे. मेरा ये था कि मैं यहाँ रह के दरभंगा में रह के कैसे उस चीज़ को करूं. तो ऐसे मैंने 12th किया. फिर 12th के बाद मैंने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया था. उस टाइम में मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि मैं किस लाइन में जाना चाहती हूँ, बट ना कोई शूट का आइडिया था, न कैसे प्रोडक्ट दिखाते हैं, कुछ आइडिया नहीं था. एंड यू सॉ द चेंज. हाँ, 2005 में जब आपने डालना शुरू किया तो उसके बाद फिर लोग अप्रोच करने लगे कि ये मैं खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ. किसी और से मांग के करते थे, उसका भी कहानी है. फोन भी किसी और से लिया,
फिर उसके बाद पोस्ट भी किसी और के फोन से करके, क्योंकि तब हमारे पास फोन भी नहीं हुआ करता था। हमारे पास And then it all went off, and here you are, talking about this. The focus here is that you all have chosen to come back to Bihar, to work in Bihar. The idea is to become a job generator, job creator. Was that decision tough? Yes, Or was it because you saw that, your parents were running something, they needed an extra hand, so you extended that hand? मैम, पहले तो यहाँ का जो मेंटालिटी है ना बिहार में, जैसे अभी भी इतना हम मुझे लग रहा है कि कुछ तो हमने अचीव थोड़ा किया होगा। स्टिल जो आते हैं मेल क्राउड हमारे स्टोर पे, वो पूछते हैं कि पढ़ाई कर रही हो, मतलब इसका आगे क्या सोचा है। तो ये जो सोच है ना यहाँ के लोगों का, वो बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि मैं बोलती हूँ मेरा फुल टाइम काम है, मैं 200-250 महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, और उनसे और भी महिलाएं जुड़ी हुई है। सब हमारे पास नहीं आते, लेकिन हर घर में जब एक साड़ी कोई बनाती है तो आप ये मान के चलिए उसके साथ 3 और महिलाएं जो घर की हैं, जो घर से नहीं निकलती हैं, वो भी उस साड़ी पे काम कर रही होती हैं। तो आप उस काम को इतना छोटा सोच रहे हो, तो मैम वो बहुत एक टफ डिसीजन तो यहाँ आना। ओके, सो व्हेन वी आर, क्योंकि इलेक्शन अभी यहीं पर है, चल रहा है, अभी आप लोग वोटिंग करने जाइएगा, क्या इशू पर वोट करिएगा, क्या सोचिएगा? मैम, दरभंगा में देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है ना, मतलब नहीं दिख रहा है हमें। उल्टा, जैसे अभी मेरी सिस्टर इस बार आई है तो वो कह रही है कि हर बार आती हूँ दरभंगा और देखती हूँ थोड़ा पीछे ही जा रहा है, हर जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन है। एक वो जो प्रॉपर प्लानिंग से होता है ना, दैट प्लानिंग इज मिसिंग इन दरभंगा। तो और अभी का जो मैं बताऊंगी, जो खड़े हैं लोग, एक होता है ना कि पता हो कि कौन कौन लोग खड़े हैं, कौन आने वाला है। पहले के टाइम में वही लोग आके कहते थे कि हमारा अपना प्रपोजल देते थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। कुछ सालों से वो स्टैग्नेंट हो गया है, और वो अपना अप्रोच उस तरीके से नहीं बना रहे कि वो हमसे कनेक्ट करे कि वो क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि ही इज वेरी कंफर्टेबल कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है और यही चलेगा। बट मतलब वो कॉम्प्लिसेंसी हो गई है। यस मैम, बट उनको ये जानना, यस मैम, उनको ये जानना चाहिए कि आजकल की जनरेशन काफी एक्टिव है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो देख के जज करेगी। तो आप ये सोच रहे हो कि हम कंफर्टेबल हो गए, सो इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट अबाउट यू, क्या सोच करके वोट करेंगी आप? सोच के यही है कि एक तो दरभंगा में एक्चुअली में अभी हम लोग कल भी मार्केट गए थे तो देख रहे थे धूल ही धूल है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये बात है कि जैसे कि अभी एक बार अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्लानिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो मे बी डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी से बहुत साल लगेंगे और कितने टाइम लगेंगे मुझे उसका आइडिया नहीं है। बाकी हमारे स्किल्स में अगर देखा जाए पेंटिंग के अराउंड में, तो जैसे कि इसके जो भी उद्योग विभाग है और जो भी है वो लोग हमारे काम के लिए, सरकार हमारे काम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बट एज अ यूथ यू थिंक यू वांट मोर? हाँ, आई वांट मोर एक्चुअली, बिकॉज दिस इज नॉट इनफ एक्चुअली। सो शताक्षी, डू यू एंड अप कंपेयरिंग दरभंगा टू से दिल्ली? क्योंकि तुम दिल्ली से आती होगी, तुमको लगता होगा कि कैसे उस स्पेस पर वहां पे काम हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। आई एक्चुअली एंड अप कंपेयरिंग टू सिटीज एंड यू नो मेरा हमेशा से ये रहा है कि आई विल कम बैक टू बिहार, लाइक आई हैव ऑलवेज दिस इन माई माइंड। एंड व्हाट आई रियलाइज कि जब भी मैं बाहर पीछे आ रही हूँ हर साल वेकेशंस में, आई सी कि रिवर्स डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ अ एक्सट्रीमली रॉन्ग थिंग एक बिहार जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पे यूथ, जहाँ की इतनी अच्छी माइंड, इतने अच्छे ब्रेन है, एंड देन वहाँ पे रिवर्स डेवलपमेंट हो रहा है। लाइक ये फॉर एग्जांपल ये जो रोड है अभी मेरे घर के जस्ट बगल वाले, ये बहुत ही परफेक्ट रोड होता था व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक दिल्ली से। तो मैं सुबह कहीं वॉक करने या फिर कुछ ऐसे सोचती थी, जाती थी शाम को। नाउ मैं कुछ दिन पहले से गई दी के साथ, नो आई कांट इवन वॉक ऑन दैट रोड। यू मेकिंग एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो क्योंकि सड़क बन रही है और फिर बनाई जा रही है तो और खराब हो जा रही है। ऐसे ही होता है, आपको पता है, एक सड़क बना, उसके ऊपर फिर से कुछ साल के बाद नाला तोड़ा उन्होंने, फिर नाला डेवलप किया, उसका हाइट बढ़ गया, अब उसी सड़क के ऊपर दोबारा से सड़क बन रहा है। इससे किसका पैसा जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं ओवरऑल। क्योंकि you all are next generation, so you end up comparing with other cities. You feel that things are moving at a slower pace. बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। बिजली का देखे तो 125 यूनिट हमें वो मिला है फ्री में, तो वो सारी डेवलपमेंट हो रही है। और अगर आप बिहार एज इन पूरा टोटल देखें तो मैं देख रही हूँ कि डेवलपमेंट हो रहा है एक्चुअली पूरे बिहार में, इस गवर्नमेंट के अंदर। बाकी यही है कि हम बिहार को देख के वोट करें या अपने जो जहाँ पे रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को देख के वोट करें, तो वहां पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लेट्स ट्राई एंड रैप इट अप। बोलो।
अगर let's trace back to it to my school time, मेरे माइंड में, एंड मैं तब भी आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट तब भी मेरे माइंड में ये था कि बिहार पॉलिटिक्स. आई वाज एट वन पॉइंट एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड एंड ईगर. Okay, you wanted to join politics? Yeah. Okay. Very interesting. Even now? So अभी Maybe future में? हाँ, if I get a nice opportunity, I would love to join बिहार पॉलिटिक्स. तो फिर अगर क्या करती? अगर तुम बिहार की पॉलिटिक्स में होती तो तुम क्या करती? आई जस्ट ड्रीम अबाउट कि एक तो इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और बनने चाहिए कि बच्चे बाहर नहीं जाए. मैं ट्रस्ट मी, इफ आई लव बिहार सो मच, तो ये एक हिपोक्रेसी है ना कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ. तो समवेयर आई वुड फील कि मैं क्यों, मेरे जैसे माइंड या और भी जैसे माइंड, जैसे आप ऑक्सफोर्ड गए, ओके, कंपेयर वुड बी टू ह्यूज, बट इफ यू थिंक कि बिहार या फिर इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते जो कि इतनी रेप्यूटेड होती, तो मे बी आप नहीं जाते ना. रियली विश good institutions, educational institutions in Bihar. चलो दिव्यानी, क्या सोच करके वोट करेंगी? आपने तो पूरा आपकी सिस्टर अब नेता बनने वाली है. आप इन्हीं को वोट कर देना कुछ साल के बाद. हमने ये काम कर लिया तो मुझे लग रहा है कि हम कर सकते हैं. वी आर केपेबल ऑफ डूइंग. Capable of entering politics also. मैम पॉलिटिक्स की चेंज क्या है पॉलिटिक्स में? इफ यू लुक एट इट, व्हिच आर द पार्टीज? कुछ है, कोई ऐसी पार्टी है दिख रही है? मैम मैं ना कास्ट पॉलिटिक्स के थोड़े खिलाफ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट से थोड़ा ऊपर आए, क्योंकि कास्ट से आप पीछे ही जाते हो, आप क्लैश कर रहे हो, तो उसमें हमारा प्रॉब्लम हमारे साथ होता है. डेवलपमेंट हम सरकार कर ही नहीं पाती, क्योंकि तो वो कास्ट में ही खेलते रहते हैं वो, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है. नॉट जस्ट मी, नीचे के जो बैकग्राउंड के और भी लोग हैं. तो मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा हो जो कास्ट से ऊपर डेवलपमेंट करे. तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे नए लोग आए, नए यूथ आए जो कि हमें समझे और कुछ ऐसे नए डेवलपमेंट करे जो यूथ के लिए हो, जो आज के यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट. गुड पॉइंट. थैंक यू सो मच. These are the voters of Bihar. They will decide the state's future and their destiny. And that's why their voices matter. We'll continue to get you these voices from each and every district across Bihar. So do tune in to News Track every night here on India Today. Thanks so much for watching.